Professor Appukuttan, Director of MANIT, Dr. Mukund Hambardeji, Mr. Srihari Borikar, and all the other dignitaries who are present on the dais, faculty of MANIT, students of MANIT, all the more importantly, all the participants of this very important program, Savishkar, ladies and gentlemen. Kindly excuse me, I'm going to speak in English. The Hindi that is spoken here sounds like music to the ears. So I don't want that my not so good Hindi should pollute this environment. लेकिन मुझे ये आशा है कि आने वाले दिनों में मैं भी कुछ अच्छा हिंदी बोल सकती हूँ. I am highly delighted to be present here. Science and technology is growing in leaps and bounds. New technologies that are being developed are creating new opportunities on one side, and they are throwing open more challenges and bigger challenges on the other side. What was yesterday's fiction is today's reality. For example, scientists are working on 4D printing, which involves 3D printing items which can change shape after they are printed. For example, they come into contact with water. So once on print, it assumes another dimension. This can have wonderful application in medical implants and other areas. They have developed microfine adhesive sensors in Japan that can stick to living tissues like the heart or the joints, and sticking to a living tissue is extremely difficult. Even implants like bone implants, it's difficult to make them stay there and be accepted, but these surface materials which will stick to the surface will give very accurate biometric data live. As things are happening in the body, they transmit. These are all invaluable inventions, and there are many such wonder developments. Very often it is our Indian graduates who are involved in developing such technologies, but when they are outside our country, there seems to be something that is limiting us from doing what we can do in reality in our country. Most of the machinery, equipments, even mobile are imported. When we can create a world record, which Honorable Minister was also mentioning, when we can create a world record going to Mars in the very first attempt, we can certainly develop world's best television sets or washing machines or medical equipments, whatever. This is one area where our country is lagging behind and which is coming in the way of development. All we need to do is motivate our young students, stimulate their creative thinking, create an environment to express their potential by providing necessary infrastructure and necessary leadership. There is an African saying which says, it requires a couple to produce a child, but it takes a whole village to bring up the child. All of us need to participate in enabling our youngsters to do their best. The institutions, the teachers, government policies, and most importantly, the industries, and all that is connected with the growth of young minds. We need to work together and light up these young minds and give them the challenges we are facing today and tell them, you solve this, whatever technology you use, and they can live up to that expectation. They can come out with solutions and create wonders. I am glad that students are showing increasing interest in research and development. A report says last year in IIT Madras, only 2% of the students opted for R&D, whereas this year 13% have opted for R&D. I am very glad to see students participating in such large numbers in this program. They say think global and act local. While we bear in mind the developments taking place at the international level, we need to make efforts to employ science and technology for solving local problems and for local needs. This is where
conventions like Savishkar can play a very important role. Youngsters who participate get the opportunity to interact with one another, develop new ideas, take up more challenging projects. I wish to congratulate the organizers for organizing this kind of program, and I urge all you youngsters who are participating to take maximum advantage of this. It's most appropriate that this kind of program is held at NIT campus. This NIT campus is having more than 5,000 students, and our records show that more number of NIT graduates stay in India and participate in churning its economy than graduates from any other institution of national importance. At MANIT, we are aware of the mandate and the possibilities that exist. I have met a number of MANIT alumni in Bhopal and other places, many of whom have become industrialists, many of whom are contributing in a variety of ways. It would be your chance, the students who are here, it will be your chance to contribute in this fashion in future. Once again, it has been a great honor for me to participate in this program, and I'm thankful for the opportunity given to me to participate. And I also seek the cooperation and working together of all the industries, all the technical experts, technocrats who are there to work with MANIT and help in elevating this institution to greater heights, which in turn would shape the future of thousands and thousands of young students, young brilliant students. Thank you all. Jai Hind. Thank you, ma'am, for your kind words and precious words of blessings. I would like to call upon for giving his words of blessings again. लेकिन जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ उनके लिए मेरे मन में दो पंक्तियाँ आ रही हैं। किसी कवि ने खूब कहा है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो आपका इम्तिहान बाकी है, अभी तो आपने देखी है ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। कुछ इसी तरह की चुनौतियाँ हमेशा देने वाले ओजस्वी वक्ता श्री श्रीहरि बोरीकर जी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया वे उपस्थित जनों को अपने वचनों से अनुग्रहित करें। श्री बोरीकर जी। आज के इस साविष्कार IFAST 2015 के उद्घाटन समारोह पर मंच पर उपस्थित प्रोफेसर गीता बाली जी, श्री मुकुंद हंबर्डे जी, रोहित राय, अंकित गर्ग, नितेश शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील अंबेकर जी, सह संगठन मंत्री श्री KN रघुनंदन जी तथा भोपाल के गणमान्य नागरिक और इस IFAST में उपस्थित, इस IFAST में सहभागी हुए सभी युवा छात्र भाइयों एवं बहनों, मेरे मन में जब विषय शुरू हुआ, कार्यक्रम शुरू हुआ, तो सभी छात्रों को देखकर मेरे मन में एक बात ध्यान में आई। एक पंक्तियां, दो तीन पंक्तियां है, कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, जो पग चिन्ह बनाता है वो ही जग में सुरमा कहलाता है। मुझे ऐसा लगता है कि साविष्कार में सहभागी हुए सारे जो छात्र हैं, जो अपने कॉलेजेस में साल भर मेहनत करके कोई एक नया सविष्कार बनाने का प्रयास करके वो प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे सारे छात्र भाई बहन, यह निश्चित रूप से यह सामान्य छात्र नहीं है, तो ये जग में सुरमा कहलाने वाले छात्र होंगे,
क्योंकि आने वाले दिनों में शायद यह कोई ऐसा आविष्कार करेंगे कि जो शायद दुनिया के लिए एक वरदान साबित होगा। ऐसे सविष्कार करने वाले युवाओं का यह जोश भरा मेला, मुझे लगता है कि यह आविष्कार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों का संगठन है और छात्रों का संगठन होने के नाते केवल छात्रों की पढ़ाई और केवल पढ़ाई तक छात्र मर्यादित न रहे, तो पढ़ाई के साथ साथ मैं, मेरा देश, मेरा समाज, इसके लिए मेरा क्या योगदान हो सकता है, इस प्रकार की सामाजिक सोच एक छात्रों की विकसित होने की गतिविधि विद्यार्थी परिषद सभी छात्र समुदाय को देती है। हम सब लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स पावर नेशन पावर सब लोग कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर हम कहते हैं तो तुरंत बात ध्यान में आती है कि आज शायद इस सकारात्मक कार्यक्रम में यहां भी एक स्टूडेंट पावर जो नेशंस पावर करके दिखता है, लेकिन आज भी कई इलाके ऐसे हैं कि जहां युवाओं के हाथ में आतंकवादियों ने बंदूकें थमाई हैं, वो भी एक स्टूडेंट पावर है और वो भी एक नेशन पावर है। लेकिन आज उनके हाथ में बंदूक आने के कारण वो एक एंटी नेशन फोर्स बन गया है। विद्यार्थी परिषद ऐसे ही युवाओं के बीच में यह स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर है और यह सकारात्मक दृष्टिकोण हम देते हैं। तो हम अपने कार्यक्रमों के नाम भी जब रखते हैं तो केवल हमने आविष्कार नहीं कहा कि जो आविष्कार शायद बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन कुछ आविष्कार विध्वंस करने वाले भी होते हैं। हमने केवल आविष्कार नहीं कहा, तो हमने उसको साविष्कार कहा है, सकारात्मक आविष्कार हमने कहा है। ऐसा सकारात्मक आविष्कार कि जो सामान्य व्यक्ति की संवेदनाओं को, शायद उनकी संवेदनाओं को, उनकी अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने वाला शायद आविष्कार कोई भारत में निर्माण हो, इस प्रकार का आविष्कार। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम युवाओं की बात करते हैं तो बहुत बार मन में आता है कि युवा और युवाओं का कार्य कैसे होना चाहिए। तो एक दो तीन बिंदु मैं साहब के सामने रखूंगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ यूथ। फर्स्ट, करेज टू थिंक डिफरेंट, करेज टू इन्वेंट, करेज टू ट्रेवल into an unexplored path, courage to combat and problems which succeed, and I think these are the all qualities of youth. Courage to discover the impossible things, जो असंभव है उसको भी संभव करके दिखा सकते हैं, ऐसे युवाओं का जोश होता है। जिस रास्ते पर, प्रतिकूल रास्ते पर, अनुकूल रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन प्रतिकूल रास्ते पर चलकर नया इतिहास बनाने वाले यदि कोई होते हैं तो वो युवा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस युवा शक्ति के सामने विद्यार्थी परिषद ऐसे अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की गतिविधि, आयोजन हम सब लोग लेकर आते हैं। मैं उदाहरण के लिए विद्यार्थी परिषद के जैसे हीरे के कितने एंगल्स होते हैं, वैसे एक छात्र संगठन के कितने कोने और एंगल हो सकते हैं, मैं इसका संक्षिप्त में आपके सामने परिचय करना चाहूंगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स एंड यूथ, जो भारत में विदेशी छात्र पढ़ते हैं, उनको 4 साल जब भारत में पढ़ने के लिए वो आए हैं, उन सभी छात्रों को भारत की संस्कृति क्या है, 4 साल के अंदर भारत को समझकर यहां से वापस जाए और अपने देशों में वसुधैव कुटुंबकम, भारत का वर्ल्ड इज अ फैमिली, इस प्रकार का नारा लेकर अपने देशों में जाए। यह भावना विदेशी छात्रों के मन में प्रस्तावित करने वाला वो सी अपना कार्यक्रम चलता है। IIT, IIM, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, उनके बीच में थिंक इंडिया, हम अपने भारत की कल्पना कैसी करना चाहते हैं, कैसा भारत हम भविष्य में बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व में कौन से स्थान पर हम लेना जाना चाहते हैं, इस प्रकार की चिंतन शैली यदि किसी अति शिक्षित, उच्च शिक्षित छात्रों के बीच में प्रस्तावित की जाए तो भारत को देश में, दुनिया में सबसे उच्च राष्ट्र बनाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के छात्रों के सामने थिंक इंडिया नाम का प्रोग्राम हम लेके जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के भारत को जोड़ने के लिए स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग, ऐसे राष्ट्रीय एकात्मकता का प्रकल्प हम लगभग 50 साल से चला रहे हैं। मेडिकल के छात्रों के लिए
फार्मेसी, फार्मा विजन के छात्रों के लिए, जिज्ञासा आयुर्वेदिक के छात्रों के लिए, ऐसे अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम और उनके पाठ्यक्रमों के विषयों को लेकर उनके बीच में राष्ट्रभक्ति और स्वदेश की भावना कैसी जागृत हो सकती है, इस प्रकार का कार्य हम चलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी परिषद की ऐसे अलग अलग प्रकार की सोच के कारण ही इस साविष्कार का जन्म हुआ। मैं सिर्फ संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता बैठे और उनके मन में विचार आया कि ये जो इंजीनियरिंग के छात्र है, पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, इनका तो शायद पाठ्यक्रमों में, अभ्यासक्रमों में बहुत समय जाता है, लेकिन इन सब छात्रों को अपना देश, अपना स्वदेश, अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी शिक्षा कैसे हो सकती है, इन सारे विषयों के बारे में यदि उनको चिंतनशील बनाना है तो इनके पाठ्यक्रमों के अनुसार इनको कुछ कार्यक्रम हम दे सकते हैं क्या, यह विषय सामने आया। और उसमें से एक कल्पना सामने आई कि इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के जो छात्र लास्ट ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, इस प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन करना चाहिए, इसकी एक प्रदर्शनी बनानी चाहिए। शुरू में केवल प्रदर्शनी के निमित्त से यह कार्यक्रम शुरू हुआ, धीरे धीरे ध्यान में आया कि प्रोजेक्ट ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, वही प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि इसमें एग्जीबिशन और कंपटीशन ऐसे जोड़ा जाना चाहिए। फिर कंपटीशन में और एक बात सामने आई कि इसमें इन्वेंशन, नया कुछ शोध हम कर सकते हैं क्या, ऐसे नए इन्वेंशन हम कुछ करके ला सकते हैं क्या, यह बात इसमें जोड़ते आई। कुछ दिनों के बाद में हम सब लोग जानते हैं कि जैसे सिक इंडस्ट्रीज होती है, कि जो इंडस्ट्री शायद किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम के साथ कारण बंद पड़ी है, ऐसे सिक इंडस्ट्रीज से उस प्रॉब्लम को निकालना और इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के छात्रों को वो प्रॉब्लम वहां पर जाके दिखाना और उन छात्रों को कहना कि दिस इज अ टास्क फॉर यू। इस सिक इंडस्ट्री को फिर से एक बार रनिंग इंडस्ट्री शुरू करने के लिए या इसमें इस मशीनरी में जो प्रॉब्लम आया है उसको आप सॉर्ट आउट करिए, शायद यही आपके लिए प्रोजेक्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस 20 साल की पूरी यात्रा में विद्यार्थी परिषद की इस कार्यक्रम में इस प्रकार की डेवलपमेंट इस कार्यक्रम में हुई है। आज पूरे भारत के 7 प्रांतों में इसी प्रकार से कहीं सृजन, कहीं सृष्टि, कहीं डिपेक्स, कहीं आविष्कार, अलग अलग प्रकार के नामों से यह कार्यक्रम चलता है। विद्यार्थी परिषद ने पहली बार ऑल इंडिया लेवल पर इस प्रकार का कार्यक्रम करने का हमने तय किया और इसका यह परिणाम साविष्कार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों को यह कहलाता है कि हम कल के नहीं, हम आज के नागरिक हैं और आज के नागरिक होने के नाते आज समाज में यदि भ्रष्टाचार है, आज में यदि महिला सुरक्षा की बात होगी, आज देश की विकास की बात होगी, राष्ट्रीय एकात्मता की बात होगी, इन सारी समस्याओं के ऊपर देश में पनपता आतंकवाद होगा, नक्सलवाद है, इन सारे समस्याओं के ऊपर यदि समाधान कोई दे सकता है तो आज का छात्र, आज का नागरिक के नाते दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारा दायित्व है कि इन सारी समस्याओं के ऊपर समाधान हम सब लोग युवा मिलकर दे सकते हैं। इसलिए कहीं भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा इस प्रकार का एक अभियान पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद चलाता है और हम सब लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि देश के करोड़ों छात्र इस भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में शामिल होते हैं और देश में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी जो सत्ता पर बैठे हैं इनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, इस प्रकार का आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने चलाया और हम सब लोग जानते हैं कि सत्ता परिवर्तन हुआ है।